लेट्स मूव टू द फीचर्स नाउ. नाउ सी, हम जैसे ही हर एक प्रोसेस, द गुड्स इज गोइंग थ्रू अ एवरी प्रोसेस, करेक्ट. सो अ सेपरेट प्रोसेस अकाउंट नीड्स टू बी प्रिपेयर फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस. अगर आपका जो ये प्रोडक्ट है वो दो प्रोसेस से जा रहा है और फिनिश गुड्स फिर बन रहा है, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर अ टू प्रोसेस अकाउंट. If your raw material is getting converted into the finished goods, by in between the three stages are involved, so you will have to prepare a three process accounts. ठीक है. So जितना process हो रहा है, a separate process account is to be prepared. Now why we are preparing a separate process account? Because at each of the stages we are incurring a certain cost. So we need to know कि हर एक stage पर कितना कितना मेरा ये amount is involved, कितना कितना मेरा cost is been involved. Now जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, देन हमारा डायरेक्ट लेबर है, जो ओवरहेड्स है, वो मेरे क्या है, वो मेरे खर्चे हैं. तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड वॉट एवर यू आर इनपुटिंग, वो सारा कहां पर दिखाया जाता है? इट इज ऑलवेज रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड. ठीक है. इट इज ऑलवेज, बिकॉज ऑल आर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑलवेज. एंड व्हाट इज द इनपुट? इनपुट इज नथिंग बट इट इज अ ओपनिंग बैलेंस. सो वेयर यू राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस, यू ऑलवेज राइट डाउन इन द डेबिट साइड. Whereas if you are incurring any of the losses, अब यहाँ पर हमें एक loss का पूरा we will require a one whole of the lecture for discussing about the normal loss, abnormal gain as well. So if you are incurring any of the losses, normal loss, abnormal loss, और जो भी आपको output आ रहा है, that will be credited. ठीक है. Now what is the output? As I told you that normally in the normal layman language we say it as a closing stock. Where you record the closing stock, you record on the credit side. Now as we discussed before also, the output of one process becomes the input. मतलब एक का closing becomes next process का opening. So एक process का जो भी output होगा, that will become the input of the next process until the finished goods is obtained. जैसे ही finished goods बन गया तो फिर उसको again process करने की जरूरत नहीं है ना. My product has been made now. Okay. Now when you sell the goods, when the goods are been sold, तो वो जो भी sales का amount होगा, that will be transferred to the cost of goods sold account. That we will see when we will be doing the formats. Okay. These 2 points, when the goods are completed, they will be transferred to the finished goods account. This two we will be seeing when we do the format, because वहां पर और clarity आ जाएगा. Now what is the purpose? Why you are studying this chapter? So first one is to control the process का जो भी cost है उसको control करना है. ठीक है. To control the process, to control the, basically you're controlling the process is controlling of your cost, because at every stage certain cost has been involved. All your direct material, you require a labor, you require a direct expenses, and you require a factory overheads to do. ठीक है. So at every processes a certain cost has been involved to control that. और इससे वजह से हमें हर एक स्टेज पर कितना मेरा मटेरियल जा रहा है, मेरा लेबर कितना यूज हो रहा है, मेरे खर्चे कितने हो रहे हैं, वो भी मुझे पता चलेगा. So to ascertain that, and lastly why we are doing कि to ascertain the price of our product, कि मुझे मार्केट में वो कितने में सेल करना है, मुझे वो कॉस्ट कितने में पड़ रहा है. तो to ascertain the price of the product, I am preparing the process, and I'm learning the process costing. Now what all are the its advantage? तुम लोग मुझे इसके अपार्ट, अभी पहले ये नहीं देखेंगे, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को क्या लग रहा है, इसके वजह से हमें क्या एडवांटेज क्या मिल सकता है? हमारे लिए कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा. जस्ट बिकॉज यू आर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट ईच एंड एवरी स्टेज, इट बिकम्स इजी फॉर अस. वी कैन इजीली डिटरमाइन द कॉस्ट. अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि आपको फर्स्ट स्टेज में आपको कितना कॉस्ट लगा, तो मैं डायरेक्टली वो प्रोसेस अकाउंट के थ्रू आई कैन फाइंड इट आउट. सो periodically there will be a determination of the cost. काफी सिंपल है ये चीज. हर एक सिर्फ मुझे हर एक इसके ऊपर प्रोसेस अकाउंट बनाना है बस. Here I can control my cost as and when needed. है ना? Now can anyone tell me, apart from this, if you find out any more advantages, you can give me the more advantages.
Yes, we can get the cost as separately at each and every stage. That is a first point का explanation. We are periodically determination of the cost. Here we are periodically determining the cost. And what about the standard processes and the product class? Now see, ये हर एक प्रोसेस है और यहाँ पर हर एक प्रोसेस पे हमें एक WIP दैट इज सेमी फिनिश गुड्स मिल रहा है. सो इट इज इजी टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइसिंग. अगर मुझे कोटेशंस भेजना है, कहाँ पर मुझे टेंडर्स में डालना है, तो थ्रू दिस आई कैन इजीली यू नो मुझे अगर प्राइजेस के रिगार्डिंग कोटेशन और टेंडर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है, तो इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर मी टू टेक अ डिसीजन. और यहाँ पर देखो, आप जितना ज्यादा कंट्रोल, देखो हर एक स्टेज पर एक वेस्टेज होना होना ही होना है, हमें भी ये पता है. बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन हमें ये तो देख सकते हैं, हम एटलीस्ट ये मैनेजरियल कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा ओवर कॉस्ट ना हो जाए, हमारा जो वेस्टेजेस है वो बहुत मिनिमम हो, 100% यूटिलाइजेशन हो मेरे रॉ मटेरियल का. सो वी कैन टेक दोज डिसीजंस एज वेल. मैनेजरियल कंट्रोल से हम लोग ये डिसीजंस ले सकते हैं कि ओवर कॉस्ट ना हो सके हमारा. नाउ देखो, हर एक चीज का एक एडवांटेजेस होता है, द सेम वे वी आल्सो हैव अ डिसएडवांटेजेस एज वेल. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस? नो डिटेल्ड एनालिसिस विल बी गिवन. ठीक है, यहाँ पर मुझे अगर मैं सिर्फ यहाँ पर कितना यूनिट, मुझे कितना मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या मिल रहा है, आई एम जस्ट फोकसिंग मोर ऑन दैट. ठीक है, पर मैं स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं ले रही हूँ वो प्रोडक्ट का. इट ओनली गिव्स मी द एवरेज कॉस्ट, कि हर एक प्रोसेस में मेरा एवरेज कितना बना है, पर वो मेरा मुझे एक स्पेसिफिक कॉस्ट, पूरे कॉस्ट का एक स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं दे रहा है. नाउ दिस इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. दिस गिव्स ओनली द हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट इज नॉट यूज इन द फोरकास्ट. अगर मैं पहले से फोरकास्ट करके रखूं, जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था, वी फर्स्ट फोरकास्ट, कि हम पहले से ही स्टैंडर्ड बना के रखते कि हाँ इतना यूटिलाइजेशन होगा. हियर यू कैन नॉट फोरकास्ट. जब तक आप प्रोसेस करोगे नहीं, तब तक आपको कॉस्ट का बारे में पता नहीं चलेगा. तो देयर इज नो नीड, यू कैन नॉट फोरकास्ट हियर ऑफ अ फ्यूचर ट्रेंड्स. So that is why here we have a process gives only us the information of a historical cost. Then you have a estimates. Here you just estimate कि हाँ मेरा normal loss इतना हो सकता है, मेरा wastage अगर हुआ तो इतना हो सकता है, मेरा मेरा valuation of if I am valuing my WIP, तो suppose this is ये इतने पर मैं value कर सकती हूँ, तो here I am only doing the estimates. मैंने पहले से सिर्फ सोच के रखा था, हाँ मुझे ये प्रोसेस में सब जाएगा तो मेरा 10% मेरा नॉर्मल लॉस होगा. So what I'm doing, I'm just determining the percentage prior, बस, और कुछ भी नहीं. तो here it is the, मैं सिर्फ estimates कर रही हूँ. Because of the estimates मेरा जो proper actual जो cost हुआ है उसको calculate करना बहुत difficult हो जाता है. So it becomes very much difficult for me to calculate the proper cost for the same. So this is about the advantages as well as the disadvantages.